English short review. This is a laptop you can consider. It's the Legion Pro 7i. Since it doesn't have the uh, mini LED display, which I strongly not recommended in the past videos due to its PWM issue. So this is the next cheaper alternative, which is the 4900HX and 4090 and the 4900HX and 4080. Okay. Now, there aren't a lot of reviews of this laptop. That's the only thing I would say. There aren't a lot of reviews of this laptop. The difference between the 4080 and 4090 is about approximately 50,000. टीवी आ गया फ्लिपकार्ट वाला था बोलता है सामान आएगा तो चेक कर लेना बाद में कुछ होने करेंगे ना रिटर्न ना कुछ तभी तो तुमको नहीं लेते हैं now anyways short review. The difference between the both variant is 50,000, about 50,000. CPU is the same. GPU 4080 and 4090. The let me show you the cost. If you try to make the configuration of this laptop, here is what you have to choose and what you don't have to. 4900HX Windows. Don't take the Pro from here. Microsoft Office, if it is required, you can buy from Windows directly. It's not exactly cheap here. 32 GB second solid state drive, I would suggest buy online. And 500, there's 4080 and 4090, 1080p. That, there's nothing else to do. So it's 304,580 without any coupon discount. That's all right. 304,580. So this will be 273 with the 4080. Is it 273? Something around that. So what did I add extra? Did the price change? 304,580. Give me one moment. Yeah, there is a price change. 304,580. Oh, maybe I accidentally included the ATP last time. Yeah, and if I select the 4090, the cost goes up by 358,998. 358,998. Okay, and that was the cost without ATP, with ATP earlier. There is not a lot of review about this laptop. That's the main thing that I will say about this laptop. Not a lot of information about this laptop online. Only that it has the older heat pipe design. Okay, so which has fans on all the sides. Okay, that's the main thing about this laptop. And no, someone else got the Slim 7i, not the Pro I. Okay, and there is not even a lot of details are not here. That is the thing. Come on, we will discuss. If you have this amount of money, we will talk about it. What 100% DCI P3? Okay, let's get into the main things of this laptop. Main things that are important. 4900HX, you're getting in cheapest laptops also. 32 gigs RAM, you're also getting in cheaper laptops. What you're not getting in cheaper laptop is 100% DCI P3 screen, 500 nits, and HDR400. I don't know why it's not touch at this point. You should just give everything. 99 watt hour battery. Ignore the whatever is written. It won't last. This is 14th gen Intel. On top of that, it's HX CPU. On top of that, it's a gaming laptop. Anyways, so yeah, that's the price. That's the code. You can talk to me. You can get it at this price. I will link all the regarding important videos and what I'll just link those videos right now. How to get GST, how to get discount and cashback. Okay, and GST. Where is the GST video? GST is not for you if you don't have your business and you're not buying it as a business process. And how we get cashback.
Okay, these two should be down actually. What was the code? Command Alt down, Alt Shift, Control Alt down, Alt down. Oh, okay, so it's this one. Control Shift down, Control Shift up. All right, and make sure you and extra code. What else will you ask? What is ADP? Should I buy it? What else will you ask? Discount code GST. How is Lenovo service? At this price point, you should do a lot of your research. Anyways, moving on. हिंदी में आते हो देखो oh yeah, let's talk about the scores a bit. अब हिंदी हम बात करते हैं अब बहुत देखो यार, ज्यादा डेटा है नहीं, सीधी सी बात। ज्यादा डेटा है नहीं, खाली करके रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि है ही नहीं ढंग की जगह, कहीं पे आया नहीं रिव्यू, है ना। तो 4900 HX का C9 423 पहले सिंगल उठाना जरा। सिंगल किधर है इसका? सिंगल सिंगल में बहुत सारा लैपटॉप है। मेरा 2000 देता है 14700 HX, 2200 MSI वेक्टर, ओमेन। इससे ज्यादा कोई है? ये जनरली ये टॉप पे ही रहता है। टाइटन का कम का है ये? ठीक से रिव्यू नहीं किया क्या जी? 2150। चलो जो है डाला, जो है डाला जाए। ओह हाँ, लाल इसीलिए, ये लाल नहीं है बिकॉज बैकग्राउंड, क्योंकि दीज आर एक्यूरेट डेटा, है ना। दिस इज एक्यूरेट, दिस आर रेड बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेट डेटा। वेयर इज द मल्टी कोर? MSI वेक्टर 32,000, 33,000, टाइटन 32,000। आई थिंक इतना नहीं जाएगा, इतना जाएगा मिनी एलईडी वाले लैपटॉप जो इससे भी महंगा है। समथिंग समवेयर अराउंड हियर आई एम एज्यूमिंग, 28-29 हजार के अराउंड आई एम एज्यूमिंग, है ना। अरे यार, बेकार मूड खराब कर दिया कीबोर्ड लेकिन। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा स्कोर को जरा देख लेते हैं। Geekbench का स्कोर एक्यूरेट है, ये रहा, इसी का है, 83DE का। 83DE है ना। हाँ, इसी का सारा स्कोर है। बेस्ट वाला उठाते हैं, 3000 और 18,000, 3000, 18,200। ठीक है, सारा स्कोर ये रहा। इसमें इस लैपटॉप का स्कोर नहीं मिला। जो लैपटॉप का स्कोर मिला है वो है, सीपीयू कितना है इसका, रैम कितना है, स्टॉक रैम है 5600, और ये वाला जो स्कोर है ये ओवरक्लॉक रैम है 6200। तो ये इस लैपटॉप का आई थिंक नहीं है, मोस्ट लाइकली नहीं है। होगा भी तो स्टॉक में तो कोई ये परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। 25,000, तो इसको ड्रॉप करते हैं, दूसरे लैपटॉप में आते हैं, इसको भी ड्रॉप करते हैं, तीसरे में आते हैं। और ये MSI का है, ये भी अप्रोक्सीमेट स्कोर उठाएंगे, तो इसका स्कोर हो जाएगा 5200, 24,300 जो हम यहाँ डालेंगे। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड। ठीक है, सिनेबेंच यही होगा, या सीपीयू सेम है, लैपटॉप चैसी सेम है। को कमेंट किया था कि भैया लीजन में 14650 HX। अच्छा, वो नेक्स्ट वीडियो छोड़, ये कहीं में बता देंगे तो पगला जाओगे, इतने में पगला जाओगे। 4080 भी देख लो जल्दी जल्दी। यही तो लैपटॉप है जी। नॉन 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 लेनोवो फाइनली। ओवरक्लॉक नहीं है ना? आई थिंक ओवरक्लॉक है।
ये इसका स्कोर नहीं है। जीपीयू स्कोर आई थिंक, गेस करना पड़ेगा यार, ये गलत बात है। 20,000 के अराउंड में, जब अप्रोक्सीमेट ही कर रहे हैं। इसको भी कहा है, इसको भी 24,000 करो। ठीक है, ये रहा स्कोर में डिफरेंस अगर कंपेयर कर रहे हो ऊपर के लैपटॉप से। ये रहा कंपैरिजन तुम्हारे सामने। एक चीज हम बताना चाहेंगे इससे पहले कि तुम इस लैपटॉप को बढ़िया से कंसिडर करने लगो। एक लैपटॉप था जो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, और वो लैपटॉप है, कहाँ है आउट ऑफ स्टॉक? वो लैपटॉप है जिसको कंप्लीटली हम इग्नोर कर दिए थे लास्ट में आउट ऑफ स्टॉक होने से कुछ दिन पहले वीडियो, क्योंकि हमको लगा था कौन लेगा, छोड़ो यार। लेकिन जब 14th जेन का स्कोर आया, अरे यार फाइंड करो, कहाँ है? ये रहा। ये नहीं, एक किधर गया? कहीं तो रखे हैं तरह। एनीवेज चलो इसी को उठा लेते हैं फिलहाल। अबे नहीं यार था, एक सेकंड, तो फोन भी आ रहा है। एक सेकंड, सब काम आ जाता है आधा है। एनीवेज, पॉइंट मेरा ये था, पॉइंट मेरा ये था कि 7945 एच एक्स, अच्छा नेवर माइंड, 20,000 से ऊपर जा रहा है ना, ठीक। सिंगल में आ जा रहा था 7945 भी, लेकिन जहां मल्टी कोर की बात आ रही थी, एच एक्स, नहीं मेरा, हम इस सीपीयू को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसका भी रिफ्रेश आएगा, है ना, इस लैपटॉप का भी रिफ्रेश आएगा। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और अगर देखो यहाँ पे दिख रहा है, 32,000, 34,000, 34,000, इस रेंज में केवल लेनोवो नहीं कंसिडर करना। ठीक है ना, अब तुम उस रेंज में आ गए हो जहां तुम्हारे लिए पैसा बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, तुम उस रेंज में आओगे जहां तुम्हारे लिए पैसे बड़ी बात नहीं है। आसूस के लैपटॉप को भी कंसिडर करो। चाहे आसूस हम बोल रहे हैं और बाकी नहीं बोल रहे हैं, अब दिखाते हैं। अच्छा, एडीपी वाला वीडियो लगा है ना, देख के समझ जाओगे। कहाँ है, क्या नाम है इसका जी? आर ओ जी स्ट्रिक्स, आर ओ जी 3 ईयर्स एल डी पी 5,000 रुपया, है ना। टेंशन फ्री रहोगे एटलीस्ट 3 ईयर्स। ये रीजन है इस लैपटॉप, क्या कहते हैं, आसूस के लैपटॉप से कंसिडर करने का। और जनरली वो क्या कहते हैं, आसूस लेनोवो का लीजन टॉप एंड चार्ट में रहता है। एलियन रहने दो, बाहर 2 लाख का बिकता है, यहाँ 4 लाख का, कोई कंपैरिजन ही नहीं, कहाँ से खरीदोगे। ठीक है, एनीवेज पॉइंट मेरा ये था, 7945 HX, ये रहा स्कोर तुम्हारे सामने, 34,000, मल्टी कोर सिनेबेंच i23। और ये रहा इसका स्कोर जो अभी आया है, कितना है? 29,000, 29,000। ठीक है ना, तो मेरा पॉइंट ये है कि इस रेंज में थोड़ा सा AMD को एटलीस्ट देखने दो, खोलने दो, अपने पत्ते को खोलने दो। और तब तक अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह देखते रहना, सारी वेबसाइट वगैरह देखते रहना। और 7945 HX लैपटॉप पे जरूर ध्यान देना। ये तो नया लैपटॉप है ना, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, दुनिया भर का दाम कर दिया होगा महंगा, है ना, दुनिया भर का नाम कर दिया होगा महंगा। दिखाना जरा, 7945 HX और 4080, 4090, लेनोवो का ये प्राइस कोई खास कॉम्पिटिटिव नहीं है इस रेंज में, है ना, दिख रहा है। जेफरस डुओ है क्या तुम्हारे पास जी? जेफरस डुओ का 34,000 को 7945 HX में। मन तो कर रहा है डाल दे उसको यहाँ पर, क्या करते हो, डाल दिया जा, बहुत टाइम हो गया है और किसी ब्रांड का लैपटॉप डाले नहीं है।
आसूस ROG सर एक को थोड़ी रिव्यू नहीं है। आओ डिस्कस करते हैं, आओ आओ ना पढ़ के, हाँ नहीं डालेंगे इसको, अभी नहीं डालेंगे। और पहले तो इस रेंज में कोई मिलो तब दिमाग लगाया जाएगा, करेंगे 2 घंटा 3 घंटा लगाएंगे, अभी 3 वीडियो और बचा हुआ है, अभी एक ही खत्म हुआ है। ठीक है चल, एनीवेज ये छोटा लैपटॉप खत्म हुआ, मैं बड़े लैपटॉप पे चलता है। जाते जाते लैपटॉप 4900 उठाना लैपटॉप, जबकि 7945 लास्ट ईयर का AMD अवेलेबल है, तो सेंस बनाता है। एक जूलिस छोड़ के तो और कुछ नहीं हमको देखना है। लास्ट ईयर भी जाओगे थोड़ा नेटवर्क पे सर्च करोगे तो हमको आई थिंक तुमको मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो, जिससे 1945 को बहुत प्रेस किया। 7945HX का जो नया CPU है मेरे हिसाब से लॉन्च हो नहीं हो एटलीस्ट एक नज़र देख लेना चाहिए कि वो CPU कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। बाकी हमको पता है कि लोगों के पास पैसे होते नहीं होते, ठीक है ना। और हाँ इस रेंज में कोई खास डिस्काउंट लेनोवो कोई वेबसाइट पे कोड वोड लगा के भी नहीं है। अमेजन फ्लिपकार्ट सब देखना है, आना है, डिस्कशन करना है, सब कंपनी को लेकर चलना है, नो वरीज, है ना। जिस सबसे हमको प्रॉब्लम है हम बता ही देते हैं, और हम बोलते हैं कि भाई देखो ये रीजन है इसको नहीं रिकमेंड करने का, तुम बोलोगे तो कर सकते हैं, बस कोई बात नहीं। यार हमको लगा था कि वीडियो बड़ा सिंपल होगा, नहीं है सिंपल। कैसे सिंपल है, 7945HX CPU जो एग्जिस्ट कर रहा है बगल में इस रेंज में, ये वीडियो सिंपल नहीं हो सकता। एनीवेज आओ, कोई आओ, जब दो चार से बातें करेंगे डिस्कशन करेंगे आपस में, खुद ही वीडियो बन जाएगा नेक्स्ट, ठीक है चलो।